औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome in English lecture of class 5. It is 9th September 2021 and the day is Thursday. Our today's task is unit number 4. Its name is collecting things. Students, before start the lecture, I have some questions for you. Students, you have to listen the question and answer to yourself. आपने क्वेश्चन सुनने हैं और ख़ुद अपने आप को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर लेजर टाइम? जब आपका फालतू वक्त होता है तो उस टाइम आप क्या करते हैं? एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज़, डू यू लाइक टू कलेक्ट थिंग्स? क्या आप चीज़ों को जमा करना पसंद करते हैं? यू हैव टू आंसर टू योरसेल्फ। आफ्टर टुडेज़ लेक्चर यू विल बी एबल टू नो अबाउट हॉबी एंड एडवांटेजेस ऑफ हॉबी। आप ये जान सकेंगे आज के लेक्चर के बाद कि हॉबी क्या होता है, मशगला क्या है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। नाउ ओपन द पेज नंबर 40, कलेक्टिंग थिंग्स. Before started, I have some difficult words and common words for you. These words are difficult to pronounce, so pronounce them with me. Difficult words are archaeology, botanist, cabinet, preserving, pleasant, adult, antiques, profession, decision. Other than there are some common words that we use again and again during our reading. The common words are is, so, of, are, and, to, it, the, in. These are not difficult and easy to pronounce. Now open the page number 40, collecting things. Collecting means to gather, to store, collect or add. कलेक्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को जमा करना, उसको इकट्ठा करना. There are many people who like to collect different things. For example, some people like to collect books, some people like to collect coins, seashell, plates, etc. And mostly children are like to collect their toys. So our today's task is about collecting of things. Let's start the reading. First of all, look at the words given at the top of page. Archaeology. Archaeology means a scientific study of ancient things. पुरानी कदीम चीज़ों की स्टडी करना. Next word is botanist. Botanist is a person who have interest in plants. ऐसा आदमी जो पौधों में इंटरेस्ट लेता है उसको botanist कहते हैं. Next word is cabinet. Cabinet is a drawer or shelf. ऐसी अलमारी जिसके ज़्यादा से खाने होते हैं उसको कैबिनेट कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रिजर्विंग. प्रिजर्विंग मीन्स कीपिंग समथिंग प्रोटेक्टेड. किसी भी चीज़ को हिफाजत के साथ रखना प्रिजर्विंग कहलाता है. नाउ कम ऑन द रीडिंग. हैव यू एवर थॉट अबाउट मेकिंग अ कलेक्शन ऑफ समथिंग? Collecting has always been a pleasant pastime for millions of children all over the world. The world is so full of interesting things that quite often children and adults too become interested in collecting. In this first paragraph, it has been told that in all over the world, million children like to pass their time or spend their time peacefully or happily by collecting things. यानी कि दुनिया में बहुत से बच्चे और बड़े लोग भी ऐसे हैं कि जो चीज़ों को जमा करने में बहुत दिलचस्पी लेते हैं. चीज़ें जमा करके वो अपना जो उनका फालतू टाइम होता है उसको अच्छे तरीके से खुशी के साथ स्पेंड करते हैं. स्टूडेंट्स, अगेन रीड द पैराग्राफ. हियर इज़ अ वर्ड थॉट. थॉट मीन्स टू थिंक. थिंक इज़ एन एक्शन वर्ड, सो ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. हियर another word that is collecting. Collecting is also a verb. You have to search all the verbs from this paragraph. Now come on the second paragraph. What kind of things do people collect? लोग किस किस्म की चीज़ें जमा करते हैं? The answer to this is anything and everything. इसका जवाब ये है कि कोई भी चीज़ और हर चीज़.
कोई भी चीज़ लोग जमा कर सकते हैं और हर चीज़ जमा कर सकते हैं। देयर इज़ नो रूल दैट सेज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी कलेक्टेड। यहाँ कोई ख़ास किस्म का रूल नहीं है कि कौन सी चीज़ हमें कलेक्ट करनी है और कौन सी चीज़ नहीं करनी। कोई भी चीज़ हम कलेक्ट कर सकते हैं। स्टैम्प्स, शेल्स, बटरफ्लाइज, हैट्स, feathers, leaves, stones, matchbox, covers, antiques, plates, costumes, cars, and 1001 other things are collected by people in every corner of the world. यानी कि पूरी दुनिया में हज़ारों लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जमा करते हैं। जैसे कि कुछ लोग मोहरे जमा करते हैं, कुछ लोग सिपियाँ, तितलियाँ, टोपियाँ, पर, लीव्स यानी पत्ते जमा करते हैं, कुछ लोग पत्थर जमा करते हैं और माचिस के कवर, कुछ एंटीक, कुछ प्लेटें, कॉस्ट्यूम्स यानी कि पोशाक वगैरह, कुछ कारें जमा करते हैं। और ये तमाम दुनिया में मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जमा करते हैं। Simply we can say that in this paragraph it has been told that there is no particular rule to collect things. In every corner of the world there are 1,000 things that we can collect. Some people like to collect stamps, butterflies, hats, stones, leaves. There are many things that we can collect according to our own choice, and this is called our hobby. यानी कि ये जो चीज़ें हम किसी भी अपने फारिग टाइम में अपने आप को बिज़ी रखने के लिए या खुशी के लिए हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो चीज़ों की कलेक्शन है या कुछ भी है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा हॉबी है, ये हमारा मशगला है। नाउ अगेन रीड द पैराग्राफ एंड पिक आउट द वर्ब्स। नाउ कम ऑन द थर्ड पैराग्राफ। सम पीपल begin a collection as a hobby. It is an enjoyable way to spend a rainy afternoon or some free time. Quite often what starts off as a hobby or pastime develops into a more serious study or even a profession. जो लोग चीज़ों लिस्ट बन जाए, यानी बोटानिस्ट कौन होता है? ऐसा इंसान जिसे प्लांट्स की स्टडी में इंटरेस्ट होती है। मीन्स ये कि जो भी हॉबीज़ होती हैं वो हमारा प्रोफेशन बन सकती हैं, जो कि यूज़फुल भी होती हैं। इन दिस पैराग्राफ सम प्रपोजिशंस आर यूज्ड। प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड विच शोज द पोजीशन ऑफ एनीथिंग। into, on, over, these words are called preposition. Now there are some conjunctions also. Conjunction is a word that joins two sentences. For example, are, and, but. प्रपोजिशन क्या होता है? जो किसी भी चीज़ की जगह ये बताता है हमें कि कौन सी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, पीछे है, दाएं बाएं, ये प्रपोजिशन कहलाते हैं। और कंजक्शन वो होता है जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। तो आपने इस पैराग्राफ में से कंजक्शन और प्रपोजिशन को चूज़ करना है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। हाउ डज़ अ पर्सन स्टार्ट अ कलेक्शन? कोई भी आदमी कलेक्शन को कैसे स्टार्ट करता है? दिस इज़ नॉट एज ईजी अ क्वेश्चन एज इट सीम्स। ये क्वेश्चन जितना ईजी नज़र आता है उतना ईजी ये है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू कलेक्ट। सबसे पहले आपने ये फैसला करना है कि आप कौन सी चीज़ को जमा करने जा रहे हैं। यू विल ऑफ कोर्स बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स। यकीनन आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनके साथ आप मुतासिर होते हैं। इन द एंड यू विल वांट टू कलेक्ट समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। एंड पे आपने क्या करना है? उस चीज़ को कलेक्ट करना है, उस चीज़ को कलेक्ट करना स्टार्ट करना है जिसमें उस चीज़ को कलेक्ट करना स्टार्ट करना है जिसमें आप इंटरेस्टेड होंगे, जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। योर डिसीजन विल डिपेंड ऑन वेदर द थिंग यू विश टू कलेक्ट आर अवेलेबल नियर यू। आपका जो डिसीजन आपने लिया है वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो चीज़ आप कलेक्ट करना चाहते हैं वो आपके नज़दीक दस्तयाब है, अवेलेबल है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ नो यूज़ कलेक्टिंग सी शेल्स इफ़ यू लिव माइल्स अवे फ्रॉम द सी। यानी कि अगर आप समुंदर से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं तो फिर आपको सी शेल्स जो होती हैं, सिपियाँ, उनको कलेक्ट करना नहीं चाहिए। सेल्डम विजिट द सी साइड, या आप कभी कभार समुंदर पर जाते हैं, समुंदर के साइड पर जाते हैं। एंड नो वन लिव नियर द सी हु माइट सेंड यू सी शेल्स। और आप ये भी जानते हैं कि उस समुंदर के आसपास कोई ऐसा बंदा नहीं रहता जो आपको वो सिपियाँ सेंड कर सके। तो फिर आप उन सिपियों को कलेक्ट करने का आइडिया नहीं रखेंगे अपने पास। इट इज़ नो यूज़ कलेक्टिंग फ्लावर्स इफ़ यू सेल्डम विजिट अ गार्डन और अ कंट्री साइड।
यानी कि अगर आप बाग में नहीं रहते या फिर कभी कभार वहाँ जाते हैं तो फिर आपको फ्लावर्स कलेक्ट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। In this paragraph, some instructions has been shared to collect the things. It has been said in this paragraph that first of all you have to take decision that what are you going to collect. Then look at the position of that thing. For example, if you are living miles away from thing, for example, if you are living miles away from the sea, you should not collect the seashells. Like this, if you don't have approach to the garden, you should not take decision to collect the flowers. I hope you understand the lecture very well. In today's lecture, we learned that what are hobbies and how hobbies are useful. I hope you understand it very well. Now note down the diary, unit number 4, collecting things, page number 40 full and 41 half reading. Make a list of verb, preposition and conjunction. Also write few lines about your favorite hobby. आपने क्या करना है, पेज नंबर 40 और 41 की रीडिंग करनी है। इसमें से वर्ब, प्रपोजिशन और कंजक्शन को सर्च करके आपने रजिस्टर पर लिखना है और फेवरेट हॉबी के बारे में आपने चंद लाइंस लिखनी है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज़।